So now I am taking up numerical content of grade 11. So today my video, this one is based on the basic concepts of chemistry, that is chapter 1 of grade 11. And I will be taking up numerical on both the boards, like the numerical that include the CBSE board का जो content है and the ISE board also, as I do in my previous videos, like as I have done in my previous videos also. One more thing, क्लास 11th के मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर and chemical equilibrium पे numerical I have already made. I'm already made videos on that, so I'll share the link to that in my description box. तो अगर आप उस पे based numerical practice करना चाहते हैं, they are already there. And this one is the third chapter of chemistry which I'm taking up, that is based on numerical. सो इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स है एंड और भी जो मुझे मिलेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पे न्यूमेरिकल, सो आई विल टेक अप दैट स्टेप बाय स्टेप. बट फर्स्ट जो है, अब मैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने वाली हूँ, एंड दैट इज द बेसिक concepts of chemistry. Now basic concepts में there are a lot of there number of topics, that we will be taking up in this chapter, and mostly सबके सब जो है they are numerical based. So ये जो है चैप्टर पे जो वीडियोस है मेरे, ये लंबे होने वाले हैं. दिस वन इज द फर्स्ट वीडियो. सो मैं सबसे पहले इसमें ले रही हूँ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. एंड in theory part, you must have read about them, like there are various laws of chemical combination which include law of conservation of mass, law of definite proportion, law of multiple proportion, Gay-Lussac's law, etc. right? So ये जो laws हैं एंड लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ऑल्सो. सो ये जो लॉज हैं इन पे न्यूमेरिकल जो होंगे मेरे अभी कवर होंगे इन माय अपकमिंग वीडियोस. नाउ दिस वीडियो इंक्लूड्स 3 लॉज: लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, राइट? एंड बाकी मेरे अपकमिंग वीडियोस में आई विल बी टेकिंग अप. तो स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से. Now I'll explain a bit about conservation of mass, and it's very simple. You might have read in your previous years also. So law of conservation of mass says that during any physical and chemical change, right? First of all मैं लिख लेते हैं हम क्या करने वाले हैं. हम कर रहे हैं law of conservation of mass, and अभी के लिए इस पे न्यूमेरिकल बहुत सिंपल होंगे, एंड मैं अपने और वीडियोस में कुछ और न्यूमेरिकल भी लूंगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. रादर जो मैं अभी कवर करा रही हूँ तीनों लॉज, इन पे न्यूमेरिकल भी लूंगी. तो अभी हम फोकस करते हैं इन 3 लॉज पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वेरी सिंपल, दैट सेज कि किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस में, केमिकल चेंज में, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट जो बनते हैं दैट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, राइट? सो मास ऑफ products formed is equal to mass of reactants. Very simple, mass of reactants. और ऐसे न्यूमेरिकल आपने या ऐसे क्वेश्चंस आपने एंड सेम लॉ आपने पहले भी जरूर पढ़ा होगा. एंड for example, if A and B are 2 reactants and they react to form products C and D, then mass of A plus mass of B in this reaction is equal to mass of C plus mass of D. ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल लॉ है, एंड इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी बहुत सिंपल है. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं इस पे. द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज दैट what mass of silver nitrate will react with 5.85 gram of sodium chloride to produce 14.35 gram of silver chloride and 8.5 gram of silver nitrate if the law of conservation of mass is true. So इसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, एक सिंपल रिएक्शन हो रही है जो आपने बहुत बार आई थिंक पहले पढ़ी होगी, जिसमें सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में हम सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन डालते हैं, एंड व्हाट हैपेंस इज सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं. प्रेसिपिटेट्स आर शोन बाय डाउनवर्ड एरो, एंड सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन फॉर्म में रह जाता है, राइट? सो दे आर सेइंग दैट व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद 5.85 grams of sodium chloride to produce 14.35 gram of silver chloride and 8.5 gram of silver nitrate.
So bus, very simple. So according to law of conservation of mass of these two will be equal to mass of these two. Therefore, if X is the mass of silver nitrate, then X plus 5.85 is equal to 14.35 plus 8.5. यहाँ से आपका जो X है that will become equal to 17.0 ग्राम आ जाएगा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे. So this was very simple. चलिए ऐसा ही एक न्यूमेरिकल सेकंड करते हैं. एंड दैट न्यूमेरिकल सेज when 4.2 gram of sodium bicarbonate is added to a solution of acetic acid weighing 10 gram. Now sodium bicarbonate is this, okay, and it is added to a solution of acetic acid which is CH3COOH. It is observed that 2.2 gram of carbon dioxide is released into the atmosphere. The residue left behind is found to weigh 12 gram. Show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. तो जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट में एसिटिक एसिड डालते हैं, now again this is a very common reaction. जब घर में हम लोग केक बनाते हैं, ठीक है, तो जो बेकिंग सोडा लिया जाता है उसमें हम कोई भी सिट्रिक कोई एसिड डालते हैं, लाइक लेमन डालते हैं या समटाइम्स विनेगर डालते हैं, तो आपने देखा होगा एक फिश सी बन होती है उसमें, जिसकी वजह से जो हमारा केक है दैट बिकम्स फ्लफी. तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. सो दैट रिएक्शन इज हैपनिंग हियर. बट यहाँ पे एसिड हमारा जो है दैट इज एसिटिक एसिड. उसमें हम या लेमन जूस लेते हैं या विनेगर लेते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड्स होते हैं. यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट में हम डाल रहे हैं एसिटिक एसिड. तो व्हाट इज हैपनिंग, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इन्होंने बोला ना, इट इज ऑब्जर्व दैट 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज. सो व्हाट इज हैपनिंग, दिस H2O प्लस ये होता है. तो ये कह रहे हैं कितने ग्राम हमने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, 4.2 ग्राम. कितने ग्राम एसिटिक एसिड लिया, 10 ग्राम. एंड 2.2 gram carbon dioxide is released. Upward arrow, gases are shown by upward arrow, and this is the residue that is left. इसका weight है 12.0 gram. Then they are saying show that this is according to law of conservation of mass. So mass of reactant 4.2 plus 10 is equal to 14.2 gram, and mass of product, दो ये हमारे प्रोडक्ट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ गैस जिसका वेट 2.2 ग्राम आया है, बाकी है वाटर एंड सोडियम एसिटेट जिनका वेट आया है 12 कलेक्टिवली जिनका वेट आया है 12.0 ग्राम. मतलब रेजिड्यू, मतलब जो टेस्ट ट्यूब में नीचे बच जाएगा जब हम ये रिएक्शन करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू 14.2 ग्राम. सो दिस, यस, दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नेक्स्ट करते हैं. If 6.3 gram of sodium bicarbonate are added to 15.0 gram of acetic acid solution, the residue is found to be 18 gram. What is the mass of carbon dioxide released in the reaction? Again वही same reaction है, very simple. Sodium bicarbonate लिया, उसमें क्या डाला, acetic acid. सोडियम बाइकार्बोनेट को एसिटिक एसिड के अंदर डाला, एंड जो रेजिड्यू बना, रेजिड्यू क्या बनता है मैंने अभी बताया था आपको, रेजिड्यू होता है हमारा वाटर, ओके, वाटर प्लस सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ सी जो ये रिएक्शंस हैं ये आपको, अगर in case if you have not studied them, so you will get familiar with them as you proceed in grade 11. ये सब बहुत बेसिक एंड इजी रिएक्शंस हैं. सो ये रिएक्शन कैसे लिखनी है, आई थिंक ये तो करी होगी आपने डेफिनेटली, आपने 10th ग्रेड में. बट अगर नहीं करी है, इन केस इफ यू हैव लाइक यू नो अगर करके आपको याद नहीं है, सो यू विल remember all of these reactions with time. They're very easy. So sodium bicarbonate plus acetic acid gives you water plus sodium acetate and carbon dioxide. तो कार्बन डाइऑक्साइड का वेट निकालना है. ये है हमारा 6.3 ग्राम, 15 ये, एंड आपका जो है रेजिड्यू that is found to weigh, यानी कि this is found to weigh 18.0 ग्राम. हमें क्या निकालना है, इसका मास. सपोज इट इज x. वेरी सिंपल, अगेन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस इज इक्वल टू 18 प्लस x. तो यहाँ से आपका जो x है दैट विल बिकम इक्वल टू 3.3 ग्राम. तो ये तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मास पे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लॉ पे, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन or is also known as law of definite proportion. Now what does it mean? ये लॉ देखिए, मैं आपको इन लॉज के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ। जितने ये लॉज डेफिनेशन से टफ लगते हैं समझने में, ये उतने ही इजी होते हैं। यू नो, व्हेन यू स्टेट द डेफिनेशन ऑफ दीज लॉज, दे अपीयर टू बी क्वाइट डिफिकल्ट कि क्या कहना चाह रहे हैं, बट वंस यू सॉल्व द न्यूमेरिकल, यू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। स्टेटमेंट में बहुत सिंपल है स्टेटमेंट, अगर आप उसको अच्छे से समझेंगे देन यू विल फाइंड देम क्वाइट इजी। तो मैं बता रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, while you practice these laws, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी कि इनिशियली क्या होता है जब हम 11th ग्रेड स्टार्ट करते हैं और ये लॉज आ जाते हैं, तो समटाइम्स यू नो स्टूडेंट्स गेट स्केयर्ड ऑफ कि इतने सारे लॉज हैं। एंड फर्स्ट चैप्टर जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इट इंक्लूड्स लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, लाइक लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स है ना। मोल कॉन्सेप्ट आएगा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो उसको समझना इज यू नो थोड़ा सा वो हो जाता है। तो आपने अपने प्रीवियस ग्रेड्स में किया हुआ है वो, बट फिर अगेन मोल कॉन्सेप्ट्स पे इतनी वैरायटी आ जाती है न्यूमेरिकल की जो थोड़ी टफ लगती है। देन फिर ये लॉज है हमारे पास है, इसके अलावा और बहुत कुछ है। ठीक है, उनका कुछ कुछ पोर्शन आपने अपने प्रीवियस ग्रेड में किया होता है, बट देन अब ज्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ न्यूमेरिकल। तो व्हेन यू डू दिस चैप्टर, जब आप ये करेंगे तो आपने डरना नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हमने जो है टॉपिक्स लेने हैं, जैसे मैं अभी लॉज ले रही हूँ, एंड लॉज में भी वंस यू अंडरस्टैंड दीज लॉज, देखो कंजर्वेशन ऑफ मास तो बहुत सिंपल था, अभी अपने हमने न्यूमेरिकल की है। अब हम कर रहे हैं कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, राइट। सो अब ये जो है अगर आप इसको समझ लेंगे, इट्स वेरी सिंपल, और फिर उसके न्यूमेरिकल भी बहुत इजी हो जाएंगे। देखिए समझ लेते हैं कि कांस्टेंट कॉम्पोजिशन क्या कहता है। पहले मैं डेफिनेशन एक जो होती है ना, एक जो वेल डिफाइंड जो फॉर्म में, वो मैं बता देती हूँ आपको। सो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन सेज दैट अ प्योर केमिकल कंपाउंड always contains same elements combined together in fixed ratio by weight या in definite proportion by weight। क्या बोला मैंने? A pure chemical compound always contains same elements combined together in fixed proportion by weight या in a definite proportion by weight। constant composition by weight ये भी कह सकते हो आप। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम बात कर रहे हैं वाटर की, ठीक है, वाटर इज अ केमिकल कंपाउंड, राइट। वाटर इज अ केमिकल कंपाउंड। नाउ वाटर को हम किसी भी सोर्स से लें या कैसे भी बनाएं इसको, देयर आर वेरियस वेज फ्रॉम विच वी कैन ऑब्टेन वाटर। आप टैप वाटर ले लो, आप लेक वाटर ले लो, आप कहीं से आरओ का कोई और आरओ वाटर ले लो, लेकिन जो वाटर की केमिकल कॉम्पोजिशन है दैट विल रिमेन सेम, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। उसमें दो एटम्स एच के होंगे, हाइड्रोजन के होंगे, एक एटम ऑक्सीजन का होगा। एंड जो मैंने बोला that you know a chemical compound contains same elements, so water will always contain hydrogen and oxygen, same elements combined together। and hydrogen and oxygen कैसे combine कर रहे हैं? They are combining together in such a way that there are two hydrogen atoms and one oxygen atoms, but मैंने बोला combined together in definite proportion by weight। ऑब्वियसली अगर हमेशा वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन एटम्स होंगे और एक ऑक्सीजन एटम होगा, देन इनका जो रेशो होगी वेट्स की दोनों एटम्स की, दैट विल ऑलवेज बी फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल कैसे? जैसे आपको पता है हाइड्रोजन का जो अटोमिक वेट होता है दैट इज 1, सो दो हाइड्रोजन एटम्स का अटोमिक वेट क्या हो गया? 2, राइट। एंड ऑक्सीजन का अटोमिक वेट होता है 16, तो इनकी रेशियो क्या आ गई? 1:8। सो वाटर को आप कैसे मर्जी ऑब्टेन करें, कहीं से मर्जी बनाएं, लैब में सिंथेसाइज कर लीजिए या ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्स, water will always contain hydrogen and oxygen in the ratio 1:8। so this is known as law of constant composition। अगर मैं अब एग्जांपल देती हूँ, एक कंपाउंड होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक ऑक्सीजन एटम बढ़ा दिया है, सो ये कंपाउंड भी डिफरेंट हो गया। नाउ दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, दिस इज नॉट वाटर, बिकॉज वाटर के अंदर हमेशा जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं, दे कंबाइन फिक्स्ड रेशियो बाय वेट। अब देखो यहाँ पे वेट की रेशियो क्या हो जाएगी इनकी?
2 हाइड्रोजन एटम्स की एंड 2 ऑक्सीजन एटम की 16 + 16 32. So ratio becomes 1/16. So this is not water because this is hydrogen peroxide. So that's why ratio different हो गई. तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी एक केमिकल कंपाउंड will always contain same atoms and combined in a same ratio by weight. In the same way, हम एग्जांपल एक और लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, अ वेरी कॉमन केमिकल कंपाउंड, आप हमेशा से कब से पढ़ते आए हैं ये ना। कार्बन डाइऑक्साइड को आप जैसे मर्जी ऑब्टेन करें बाय बर्निंग फ्यूल्स, राइट। आप फ्यूल बर्न करके मतलब कंप्लीट कंबस्शन से जो ऑब्टेन होता है, या हम जब रेस्पायर करते हैं, जब हम व्हेन वी ब्रीद आउट, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, देन इट इज CO2। और आप ये और बहुत सारे तरीके हैं, कैल्शियम, ये आपने पढ़ा होगा, वेरी कॉमन, व्हेन यू हीट कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं, इसको हीट करने पे ये डीकंपोज हो जाता है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो CO2. then there are so many other ways of when carbon dioxide is produced, like other ways of producing carbon dioxide or forming carbon dioxide, that you will eventually study as you proceed in the चैप्टर्स. सो मेरा कहने का मतलब है, आप CO2 को किसी भी सोर्स से ऑब्टेन कर लो. मैंने बोला CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड विल ऑलवेज कंटेन 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम. सो इनके वेट की रेशियो क्या हो जाएगी, विल ऑलवेज बी फिक्स्ड रिगार्डलेस ऑफ दी फैक्ट कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से ऑब्टेन किया है. नो CO2 कार्बन की जो एटॉमिक वेट होता है दैट इज 12 एंड ऑक्सीजन एटम का एक का होता है 16, तो देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम, तो हो गया 32, राइट. तो अब आप क्या करिए, इसको कैंसिल आउट कीजिए, 3:8. तो कार्बन डाइऑक्साइड विल ऑलवेज कंटेन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय वेट, दैट इज 3:8. सो अब जब हम न्यूमेरिकल करते हैं, तो हमें यही प्रूव करके दिखाना होता है कि जो हमने पर्टिकुलर कंपाउंड ऑब्टेन किया, जिस भी सोर्स से ऑब्टेन किया, इसके जो हमारे जो भी एलिमेंट्स हैं, दे आर कंबाइनिंग इन फिक्स्ड रेशियो बाय वेट. अब मैं आपको इसको न्यूमेरिकल करके बताती हूँ, देन यू विल गेट क्लैरिटी. ओके, तो द न्यूमेरिकल इज लाइक दिस: 2.16 gram of copper metal when treated with nitric acid followed by ignition of nitrate gave 2.70 gram of कॉपर ऑक्साइड. अब इतना कॉम्प्लिकेटेड बात इन्होंने बोली है, हमें रिएक्शन की जरूरत नहीं है. हमने करा क्या है, हमने ये किया है कि कॉपर मेटल लिया, कितना, 2.16 ग्राम, ठीक है. व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3. मुझे इसमें रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, बस बता रही हूँ. फॉलोड बाय इग्निशन ऑफ द नाइट्रेट, जब कॉपर एंड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेंगे तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा, ठीक है. हमें वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट चाहिए. gave 2.70 ग्राम ऑफ ओके, आई थिंक इसमें देयर इज लिटिल दिस थिंग, यहाँ पे है, ये अमाउंट है 2.70 ग्राम, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा. दिस इज नॉट 1.15 ग्राम, ये दूसरे एक्सपेरिमेंट में है, ठीक है. सो ये है कि जब हमने कॉपर मेटल के अंदर नाइट्रिक एसिड डाला एंड देन नाइट्रेट बना, इग्निशन मतलब जब जो नाइट्रेट बनेगा, कॉपर नाइट्रेट बनेगा, उसको जब हम हीट करेंगे तो व्हाट वी विल ऑब्टेन कॉपर ऑक्साइड. तो मैं क्या करी, मैं बीच का कोई प्रोसेस नहीं लिख रही, मैं बेसिकली लिख रही हूँ कि मिल क्या रहा है. हमें मिल रहा है कॉपर ऑक्साइड, कितने ग्राम, 2.70 ग्राम. ये हमारा टारगेट है, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बनाया. सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया है, 1.15 ग्राम कॉपर ऑक्साइड लिया है, यानी कि CuO लिया है, दैट इज 1.15 ग्राम. इसकी रिडक्शन की है ना. रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ी होंगी, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें हम रिडक्शन को एक बेसिक हम अगर स्टेटमेंट बोलूं, क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो कॉपर ऑक्साइड की जब हम रिडक्शन करेंगे, मतलब हम उसमें से ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है हमें, कॉपर 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर मिल रहा है. ये कह रहे हैं, शो दैट द अबव डेटा इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. अब एक बात बताओ, हमें करना क्या है, हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि जो ये वाला कॉपर ऑक्साइड है
और जो ये वाला कॉपर ऑक्साइड है, इसके अंदर जितने अमाउंट में कॉपर है, ठीक है, और जितने अमाउंट में, जैसे ये वाला ले लेते हैं, ऑक्सीजन है, इनकी रेशो एंड जो कॉपर ऑक्साइड ये वाला है, इसमें जितने अमाउंट में कॉपर है और जितने अमाउंट में ऑक्सीजन है, इनकी रेशो सेम है ना। कॉपर ऑक्साइड दो तरह से बना है हमारे पास। एक है ये कॉपर ऑक्साइड, जो कॉपर को हमने नाइट्रिक एसिड से ट्रीट किया, फिर उसको हीट किया, फिर कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन किया। एक क्या किया हमने, कॉपर ऑक्साइड लिया, ठीक है, बना हुआ, एंड उसको हमने रिड्यूस कर दिया कॉपर में, और हमें कॉपर की अमाउंट दोनों में पता है, हमें कॉपर ऑक्साइड की अमाउंट दोनों में पता है। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि कॉपर ऑक्साइड में, ये हमें अमाउंट पता है, हम क्या करेंगे, हम परसेंटेज निकाल लेंगे, परसेंटेज ऑफ कॉपर इन दिस कॉपर ऑक्साइड एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन दिस कॉपर ऑक्साइड। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ कॉपर इन दिस कॉपर ऑक्साइड एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन दिस कॉपर ऑक्साइड, हम ये निकाल लेंगे, और उन दोनों की, यानी कि Cu इज टू O की रेशो यहां निकालेंगे एंड Cu इज टू O की रेशो यहां निकालेंगे। ये रेशो सेम आनी चाहिए, मतलब कुछ भी हो जाए, कोई भी सोर्स हो जाए, कैसे भी कॉपर ऑक्साइड हमारे पास हो, लेकिन उसमें जो कॉपर एंड ऑक्सीजन है, दे विल ऑलवेज कंबाइन इन फिक्स्ड रेशो बाय वेट। इनकी रेशो सेम रहनी चाहिए, इनके जो मास की रेशो है वो सेम रहनी चाहिए। अब हम पहले क्या करते थे, हम एटम्स, जो हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल होता था उसकी एटम्स का हम एटॉमिक वेट्स काउंट करते थे। जैसे मैंने अभी किया था, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन के 2 एटम्स का 32। वाटर में मैंने किया था हाइड्रोजन के 2 एटम्स का 2 एंड ऑक्सीजन का 16। अब हम यहाँ पे ये नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कॉपर का जो एटॉमिक वेट है वो और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है उसकी रेशियो नहीं निकालेंगे। हमें अब इस डेटा से ये प्रूव करके दिखाना है, जो हमें गिवन है, ये 2.16 2.7, इस डेटा को यूज करना है, ना कि एटॉमिक वेट्स को। और हमारा टारगेट वही है कि हमें कॉपर एंड ऑक्सीजन की जो अमाउंट है, परसेंटेज निकालेंगे, उनकी रेशो एंड यहाँ पे भी उनकी रेशो निकाल के हमें वो सेम प्रूव करनी है। अब एक बात और है कि हम सीधा ये भी करें कि 2.7 इसका मास है, 2.16 कॉपर का, माइनस करके ऑक्सीजन का निकाल लें, तो जो वो रेशो आएगी ना, जैसे यहाँ पे देख मैं बताती हूँ, ये आ गया हमारा 2.16, राइट। 2.16 क्या है, हमारी कॉपर की अमाउंट है, राइट, और हमारा जो है इसमें कॉपर ऑक्साइड उसकी अमाउंट क्या है 2.7, इसमें से 2.16 माइनस करके हमारे पास आ गई इसकी 0.54। हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसे करने पे होता ये है कि कई बार ऐसे करने पे हम जो है हमें रेशियो निकालने में डिफिकल्टी आती है, मतलब बिकॉज ये फ्रैक्शंस है ना, तो इनको मल्टीप्लाई करने में डिफिकल्टी आती है। मतलब मैंने क्या किया, कॉपर की अमाउंट पता थी 2.16 एंड मैंने ऑक्सीजन की निकाल ली 2.7 माइनस 2.16 करके, ऐसे निकाल ली मैंने। अब मैं अब रेशियो निकालने की कोशिश कर रही हूँ। इन द सेम वे आई कैन डू हियर आल्सो, बट देन समटाइम्स इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज हमें रेशियो निकालने में डिफिकल्टी हो जाती है, तो मैं क्या करूंगी, परसेंटेज निकाल लूंगी। परसेंटेज निकालने से रेशियो बहुत इजी हो जाएगी, एंड परसेंटेज निकालना तो आपको आता ही है। कैसे, देखिए, जो मेरा फर्स्ट केस, ठीक है, फर्स्ट केस में कॉपर ऑक्साइड की अमाउंट कितनी है 2.7 ग्राम, कॉपर की कितनी है 2.16 ग्राम, तो परसेंटेज ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा इसके अंदर, वेरी सिंपल, 2.16 बाई 2.7 इंटू 100 कितना आ गया, ये आ गया 80% आएगा, ठीक है। सो अगर 80% कॉपर आ गया, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया 20%, राइट। तो इनकी रेशियो क्या आ गई 80:20। मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ इसको, 80:20, दैट इज 4:1। सेकेंड केस में कितने अमाउंट में कॉपर ऑक्साइड है 1.15, कॉपर ऑक्साइड इज इक्वल टू 1.15 ग्राम, कॉपर कितना है 0.92 ग्राम, तो परसेंटेज ऑफ कॉपर क्या आ गया 0.92 अपॉन जो टोटल होता है वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इंटू 100, ये भी आएगा 80%। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया इस कॉपर ऑक्साइड के अंदर, अगर 80% कॉपर है तो
20%। तो देन कॉपर एंड ऑक्सीजन की रेशो क्या आ गई, सेम 4:1। तो आ गई ना सेम। प्रूव हो गया लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन कि कॉपर ऑक्साइड में कॉपर ऑक्सीजन की रेशियो इज ऑलवेज सेम, इररिस्पेक्टिव कॉपर ऑक्साइड कहाँ से आया, कैसे हमने बना या क्या हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं जिससे आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा। Silver chloride is prepared by dissolving 0.5 gram of silver wire in nitric acid and adding excess of hydrochloric acid to silver nitrate form। अब अगेन हमें रिएक्शन की जरूरत नहीं है, तो आपको स्टेटमेंट से डरना नहीं है। हमें क्या है, हमें सिल्वर क्लोराइड बनाया है, हमने वो टारगेट है हमारा। किन किन मेथड से, दो मेथड से, एक ये और एक ये। पहले क्या किया, सिल्वर वायर ली 0.5 ग्राम जिसका वेट है, एंड देन बना लिया हमने सिल्वर क्लोराइड। जो भी मेथड था, नाइट्रिक एसिड डाला, फिर उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, फिर हमारा सिल्वर क्लोराइड ऑब्टेन हो गया ना। सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेटेड इज सेपरेटेड, क्योंकि इसके प्रेसिपिटेट्स होते हैं, तो उनको सेपरेट किया, फिल्टर किया, वॉश किया एंड ड्राई किया। ड्राई करने के बाद उनका वेट आया 0.66 ग्राम। एक हो गया ये मेथड। सेकंड क्या किया हमने, हीटिंग 1 ग्राम ऑफ सिल्वर मेटल इन करंट ऑफ क्लोरीन गैस। सो डायरेक्टली क्लोरीन के साथ हीट कर दिया टिल द मेटल इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू इट्स क्लोराइड। इट इज फाउंड टू वे, इसका वेट कितना आया 1.32 ग्राम। इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय द डेटा। एग्जैक्टली जैसे मैंने पीछे किया, मेरे पास सिल्वर की अमाउंट है, सिल्वर क्लोराइड की है, मैं परसेंटेज निकाल लेती हूँ। क्या करती हूँ, परसेंटेज ऑफ, फर्स्ट केस में सिल्वर की परसेंटेज ऑफ सिल्वर निकाल लेती हूँ। दिस विल बी सिल्वर की अमाउंट ओवर टोटल अमाउंट दैट इज सिल्वर क्लोराइड की इनटू 100 फर्स्ट केस में। सो ये जो परसेंटेज आएगी ये आएगी 75.76%। यहाँ अगर इसकी अमाउंट इतनी है सिल्वर की, तो क्लोरीन की कितनी हो जाएगी 100 माइनस 75.76 दैट इज 24.24%। तो ये देखो अब इनकी जो भी रेशो आई, मेरा मतलब अगर परसेंटेज सेम आ, अगर हम यही प्रूव कर दें कि जो नेक्स्ट वाला सिल्वर क्लोराइड बना उसमें भी सिल्वर एंड क्लोरीन की अमाउंट सेम है, तो ऑब्वियसली रेशो भी सेम ही हो जाएगी। तो सेकंड केस क्या है, सेकंड में परसेंटेज ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, सिल्वर की अमाउंट थी 1 ग्राम लिया था, ये जो सिल्वर क्लोराइड बना ये 1.32 ग्राम बना, तो ये आ गया हमारा 75.76%। एंड परसेंटेज ऑफ क्लोरीन विल बी इक्वल टू अगेन 24.24%। तो यहाँ पे भी परसेंटेज दोनों की सेम है और यहाँ पे भी परसेंटेज दोनों की सेम है, तो रेशो भी सेम हो गई। सो हेंस प्रूव्ड, दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। देखते हैं और न्यूमेरिकल है इस पे क्या। ओके अभी के लिए न्यूमेरिकल नहीं है, मैं अपने और वीडियोस में कराऊंगी। तो अब हमारा थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब आपको कांस्टेंट कॉम्पोजिशन समझ आ जाएगा, आ गया होगा। आप और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे इस पे तो और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। आई विल सी इफ आई हैव सम मोर न्यूमेरिकल ऑन द सेम इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए अभी फोकस करते हैं थर्ड लॉ जो हमने इस वीडियो में करना है, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब अगेन ये लॉ सुनने में टफ लगता है लेकिन समझने के बाद बहुत इजी है। नाउ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सेज व्हेन टू एलिमेंट्स combine to form two or more than two compounds, the weights of one of the element which combines with the fixed weight of the other bear a simple whole number ratio। देखो मैं यहाँ डेफिनेशन लिखती नहीं हूँ बिकॉज मैं थ्योरी नहीं करा रही हूँ। आपको जब ये टॉपिक आप करेंगे, आप अपने पास एक बुक रखिए, अपनी टेक्स्ट बुक रखिए और वहां से डेफिनेशन आप साथ साथ जैसे मैं बोल रही हूँ तो यू जस्ट गो थ्रू दैट। आई रिपीट, सो इट सेज when two elements combine to form two or more than two compounds, the weights of one of the elements which combine with the fixed weight of other bear a simple whole number ratio। अब मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। when two elements combine to form two or more compounds, for example हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं सबसे, कार्बन एंड ऑक्सीजन का। carbon combines with oxygen to form carbon dioxide
and combines with oxygen to form carbon monoxide. ये सिंपल एग्जांपल है बिल्कुल, ठीक है। अब कार्बन एंड ऑक्सीजन दे आर कंबाइनिंग लाइक दिस, राइट। तो ये कह रहे हैं कि दी वेट्स ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स विच कंबाइन विद द फिक्स्ड वेट ऑफ द अदर। अब देखिए इनमें वेट्स क्या है दोनों के, इसमें कार्बन का अगेन वो एटॉमिक वेट लेके करेंगे 12 है, ऑक्सीजन का 32 है। इसमें कार्बन का 12 है, इसमें ऑक्सीजन का एक एटम है तो 16 है। तो किसका फिक्स्ड वेट हुआ, इसका, इसका कार्बन का। सो अगेन डेफिनेशन पे आते हैं, द वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स दैट कंबाइन विद फिक्स्ड वेट ऑफ अदर। तो ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग विद फिक्स्ड वेट ऑफ कार्बन हियर एंड ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग विद फिक्स्ड वेट ऑफ कार्बन हियर। तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन कार्बन के 12 ग्राम से कंबाइन कर रहा है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड में भी ऑक्सीजन कार्बन के 12 ग्राम से कर रहा है। सो जो ये वाला एलिमेंट है they will bear simple whole number ratio, मतलब 32:16, that is 2:1। यही कहना चाह रहे हैं कि जब कोई भी कंपाउंड, जब कोई भी दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, तो दोनों में से जो एक एलिमेंट होता है वो जब दूसरे के फिक्स्ड वेट से कंबाइन करता है, तो जो उस एलिमेंट का वेट होता है इन बोथ दी कंपाउंड्स, वो आपस में क्या बेयर करते हैं, सिंपल होल नंबर रेशो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। इसमें आप देखिए, इसमें हाइड्रोजन का 2 है, इसमें ऑक्सीजन 16 है, इसमें हाइड्रोजन 2 है, इसमें ऑक्सीजन 32। Now oxygen is combining with fixed weight of hydrogen, that is 2 gram in water, and oxygen is combining with fixed weight of hydrogen, that is 2 gram in hydrogen peroxide. Then the ratio of these two is 16:32. मतलब ऑक्सीजन की रेशियो इन वाटर इज टू ऑक्सीजन की रेशियो इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज सिंपल होल नंबर रेशियो, दैट इज 1:2। ये उल्टा भी हो सकता है आपको, लेकिन फिक्स वेट करना पड़ेगा। मतलब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड 12:32, 12:16। अगर आप ये कहना चाहें कि कार्बन एंड कार्बन की रेशियो निकालना चाहें, अगर आप कि कार्बन की इसमें और कार्बन की इसमें अमाउंट की रेशियो जो है, अगर आप वो निकालना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑक्सीजन का वेट फिक्स करना पड़ेगा। मतलब देखिए, इसमें ऑक्सीजन का वेट 32 है, इसमें ऑक्सीजन का वेट 16 है। हमने क्या बोला, वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स दैट कंबाइंस विद द फिक्स्ड वेट ऑफ अदर एलिमेंट। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें कार्बन के जो है, ऑक्सीजन के जो वेट है उसको 16 बना दीजिए। क्या करिए, 2 से डिवाइड करिए, तो क्या बनेगा, 6/16 आ गई रेशो, ठीक है। अब इसमें क्या है, 12:16। अब देखिए, कार्बन इज कंबाइनिंग with a fixed weight of oxygen, that is 16 in carbon dioxide, and carbon is combining with the fixed weight of oxygen, that is 16 in carbon monoxide. Then the ratio of the weights of carbon in both, that is 6:12, will be simple whole number ratio, that is 1:2। तो आपको, आई थिंक इसके साथ आपको समझ आ गया होगा। इन द सेम वे हम इसमें भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 16 बनाने के लिए 12:32 को 2 से डिवाइड कर दिया, तभी ये 16 बन पाया, तभी ऑक्सीजन का वेट जो है वो 16 हो पाया। आप ये चीज यहाँ पे भी कर सकते हैं, H2O क्या था यहाँ पे, 2:16। यहाँ पे तो ऑलरेडी हाइड्रोजन का वेट फिक्स था, लेकिन अगर मुझे उल्टा करना हो, मुझे अगर ऑक्सीजन का वेट फिक्स करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 16 से इसको 16 बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर दूंगी। तो नाउ आई हैव fixed weight of oxygen in both, then the ratio of hydrogen in those two cases is 2:1, which is a whole number ratio. So this is law of multiple proportion। मतलब एक एटम की जो वेट है वो हमें फिक्स करना पड़ता है, और फिर दूसरे एटम्स की रेशियो निकालनी पड़ती है इन ऑल द कंपाउंड्स, एंड दैट जो वो रेशियोज हैं वो सिंपल होल नंबर होनी चाहिए। सो दैट इज ऑल अबाउट मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें हम मोर देन 2 कंपाउंड्स लेते हैं। तो ये मैं ले रही हूँ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के कंपाउंड्स। ये करने के बाद आपको एकदम समझ आ जाएगा व्हाट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एंड देन उस पर हम न्यूमेरिकल कर लेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा व्हाट इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जितना ये टफ साउंड करता है उतना ये है नहीं, इट इज क्वाइट इजी। चलिए स्टार्ट करते हैं।
नाउ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का लेते हैं। एक है N2O, एक है NO, एक है N2O3, एक है N2O4 एंड एक है नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ये सारे कंपाउंड्स हैं। अब इसमें आप वेट्स निकालिए नाइट्रोजन का। एक एटम का 14 होता है, दो का 28, तो 28 राइट इज टू ऑक्सीजन का 16, 14 इज टू 16, 28 इज टू 3 ऑक्सीजन एटम्स 48, 28 इज टू 64, 28 इज टू 80। अब हम इस पूरे उसमें किसी भी एक एटम का जो है वेट फिक्स नहीं है। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का 28 है, फिर यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 28 है, 28 है, 28 है। ऑक्सीजन का तो सब में डिफरेंट है, तो किसी एक का फिक्स कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन का फिक्स कर लेंगे। दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज ऑक्सीजन, क्योंकि हमें एक का फिक्स करके बाकी दूसरे के आपस में रेशियो निकालनी है। तो मैं अगर नाइट्रोजन का फिक्स कर देती हूँ, दैट इज मैं 14 बना देती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 14 करने के लिए इस वाले को, तो मुझे दोनों साइड जो है वो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी 14 है, ठीक है। अब व्हाट आई कैन डू, आई कैन मेक दिस वन ऑल्सो 28, मैं इसको 28 भी बना सकती हूँ, तो तब मैं रेशियो निकाल सकती हूँ। चलिए वो कर लेते हैं, वो इजी हो जाएगा, सबको चेंज नहीं करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसको 28:16 रहने देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 28 बना देते हैं। नेक्स्ट इज 28:48, 28:64, 28:80। फिक्स हो गई एक की रेशो। और अब बाकियों का निकालते हैं, ऑक्सीजन की निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 16:32:48:64:80, तो ये हो गया 1:2:3:4:5 हो गई सिंपल और होल नंबर रेशो। तो आप चाहें तो आप ऑक्सीजन की फिक्स करके, मतलब ये 16 थी ना, तो यहाँ पे 16 बना के उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको नाइट्रोजन की चेंज करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखिएगा, जब आप एक की रेशो चेंज करते हैं तो दूसरे को भी चेंज करना पड़ता है उसी नंबर से, जिस नंबर से आपने जो है अपना एक एटम की जो रेशो है उसको, एक एटम का जो वेट है उसको चेंज किया है, ठीक है। चलिए अब इस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। Two oxides of lead were separately reduced to metallic lead by heating in a current of hydrogen. तो दो डिफरेंट लेड की ऑक्साइड्स हैं, कोई भी हो सकती है, PbO, PbO2, Pb3O4, आई डोंट नो, तो कोई दो ऑक्साइड्स हैं। ओके, two oxides of lead were separately reduced to metallic lead by heating in a current of hydrogen and the following data were obtained. तो बेसिकली लेड ऑक्साइड से लेड बनाया गया है दोनों केसेस में। मास ऑफ जो पहली है येलो ऑक्साइड है दैट इज 3.45 ग्राम, लॉस इन मास ड्यूरिंग रिडक्शन इज 0.25 ग्राम। अच्छा अब एक बात है, रिडक्शन में जो मास गया वो क्या क्या चीज गई होगी, जब कोई चीज को हम रिड्यूस करते हैं, जैसे लेड ऑक्साइड को हमने रिड्यूस किया इनटू लेड, तो किस जो लॉस इन मास है वो किसका हुआ होगा, जब हमने रिड्यूस किया मतलब हमने ऑक्सीजन रिमूव किया लेड ऑक्साइड में से, तो जो यानी कि जो मास गया जो लॉस हुआ दैट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब लॉस इन मास ड्यूरिंग रिडक्शन इज द मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि रिडक्शन में हम ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हैं। सो दोनों केसेस में ऐसे हुआ, येलो में और ब्राउन में हमें ऑक्साइड का मास गिवन है, लॉस इन मास ड्यूरिंग रिडक्शन यानी कि मास ऑफ ऑक्सीजन गिवन है। शो दैट अबव डेटा इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट केस लेते हैं, मास ऑफ ऑक्साइड इज इक्वल टू 3.45 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0.25 ग्राम। देयरफॉर माइनस करके आ जाएगा, मास ऑफ लेड will be equal to 3.54 minus 0.24, this is equal to 3.21 ग्राम, ठीक है। सेकेंड केस लेते हैं, मास ऑफ ऑक्साइड इज इक्वल टू 1.227 ग्राम, मास ऑफ
ऑक्सीजन is equal to 0.16 gram. Therefore, mass of lead will be 1.227 minus 0.16. This is equal to 1.067 ग्राम. हमने क्या निकाल लिया? मास ऑफ ऑक्सीजन है हमारे पास, मास ऑफ लेड है, मास ऑफ ऑक्सीजन है, मास ऑफ लेड है. हमारा क्या टारगेट होना चाहिए? किसी एक के मास को फिक्स करके दूसरे के मास की रेशो निकालना. ठीक है, और वो जो आनी चाहिए वो होल नंबर रेशो आनी चाहिए. मतलब लेड एंड ऑक्सीजन में से किसी भी एक के मास को फिक्स करो. जैसे यहाँ पे देखिए 0.24 ग्राम है ऑक्सीजन, 3.21 ग्राम है लेड. यहाँ पे 0.16 ग्राम है ऑक्सीजन, यहाँ पे 1.067 ग्राम है लेड. तो हमें दोनों में से एक को ऑक्सीजन या लेड के मास को फिक्स करना पड़ेगा दोनों केसेस में. 0.24 से कोई एक वैल्यू 1 बना देते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लेड का मास निकाल लेते हैं. सिमिलरली सेकंड केस में ऑक्सीजन का मास 0.16 है, तो 1 ग्राम के लिए हम लेड का मास निकाल लेते हैं. फिर दोनों केसेस में लेड की मास की रेशियो निकाल लेंगे. तो चलिए वही करते हैं. सो फर्स्ट केस में क्या है? 0.25 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद कितने ग्राम ऑफ लेड? कंबाइंस विद कितना था इसमें लेड का मास? फर्स्ट केस में आया था 3.21 ग्राम ऑफ लेड. तो इसके मास को फिक्स करने के लिए 1 ग्राम ले लेते हैं. 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल कंबाइन विद 3.21 over 0.24. This is equal to 13.375 ग्राम. ठीक है, ऑफ लेड. सेकेंड 0.16 था हमारे पास ऑक्सीजन. ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद हाउ मच? लेड का कितना अमाउंट आया था? 1.0767 ग्राम ऑफ लेड. Therefore 1 gram of oxygen combines with 1.067 upon 0.16. This is equal to 6.6687 ग्राम ऑफ लेड. तो इन दोनों की रेशियो निकाल लीजिए. Therefore ratio of lead in both, that is 13.375 is to 6.67 भी ले लीजिए या 6 पूरा ले लीजिएगा. अब आया तो यहाँ पे भी वही अप्रोक्सीमेटली 2:1 आ जाएगा. तो दिस इज सिंपल होल नंबर रेशो. अब अगेन नंबर्स आपके जो हैं वो डिफिकल्ट होते जाएंगे, मतलब फ्रैक्शंस में होते जाएंगे, डेसिमल्स में होते जाएंगे. तो रेशो हमें थोड़ा सा निकालने में थोड़ा मल्टीप्लिकेशन वगैरह ज्यादा करना पड़ेगा. सो दिस इज आ गया तो होल नंबर रेशो 2:1. और एग्जांपल लेते हैं इस पे. नेक्स्ट एग्जांपल इज जस्ट अ सेकेंड. सो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है कॉपर. वेट अ मिनट. यस, कॉपर गिव्स 2 ऑक्साइड्स. On heating 1 gram of each in hydrogen gas, 0.88 gram and 0.799 gram of the metal are produced. Show that the results agree with the law of multiple proportion. तो कोई भी कॉपर की ऑक्साइड हो सकती है. आई डोंट नो विच ऑक्साइड इज इट. कॉपर की जो ऑक्साइड्स हैं, दे सेइंग कि कॉपर गिव्स 2 ऑक्साइड्स. तो कॉपर की दोनों ऑक्साइड में से जब एक ऑक्साइड को, लेकिन उनके 1 ग्राम को हीट किया तो हुआ क्या? हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो मतलब रिडक्शन हो जाएगी, मतलब कॉपर बन जाएगा. सो इट गिव्स, एक देती है 0.88 ग्राम ऑफ मेटल. मेटल मतलब कॉपर. एंड दूसरी कॉपर की जो ऑक्साइड है उसका भी 1 ग्राम लिया, उसकी भी रिडक्शन पे कॉपर ऑब्टेन हुआ एंड इट इज 0.799 ग्राम. शो दैट दिस डेटा इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. अब अगेन सेम है जैसे पहले किया था. अब हमें इस केस में मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेते हैं. ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.888. सो दिस इज इक्वल टू 0.112 ग्राम.
इस केस में 1 माइनस 0.799 दिस इज इक्वल टू 0.201 ग्राम। सो अब हमारे पास कॉपर का मास है, दोनों में ऑक्सीजन का मास है, लेकिन हमें ऑक्सीजन का मास फिक्स करके कॉपर के मास की रेशियो निकाल लेनी है। तो फर्स्ट केस में 0.112 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन combines with how much copper? With 0.888 ग्राम ऑफ कॉपर। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने साथ कंबाइन करेगी? 1 ग्राम विल कंबाइन विद 0.888 अपॉन 0.112, ये आ जाएगा 7.93 ग्राम्स ऑफ कॉपर। सेकेंड केस में है 0.201 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, it combines with 0.799 ग्राम ऑफ कॉपर। तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल कंबाइन विद 0.799 अपॉन 0.201, सो ये आ जाएगा 3.975 ग्राम। अब देखिए मैं ना एग्जैक्ट डेसिमल्स में ले रही हूँ, इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 7.93 को 8 में एंड 3.975 को 4 में। सो ये रेशियो क्या हो गई? 7.93:3.97 करके ना, इसको चाहो तो आप राउंड ऑफ कर सकते हो, नहीं तो ये अप्रोक्सीमेटली 4:1 है, ये 8:4। तो बुक्स में काफी बार राउंड ऑफ करके दिया होता है। सो आ गई सिंपल रेशियो 4:1। नेक्स्ट वन, 2 oxides of nitrogen contain the following percentage composition. Oxide A contains 63.64% nitrogen and 36.36% oxygen. Oxide B contains 46.67% nitrogen and 53.3% oxygen. Establish the law of multiple proportion. तो बेसिकली दोनों में हम अमाउंट ऑफ वेट ऑफ नाइट्रोजन एंड वेट ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेंगे, सॉरी वेट क्या परसेंटेज से निकाल लेंगे, और हम लेकिन 1 ग्राम के लिए फिक्स कर लेते हैं। मतलब इसके अंदर 63.64% नाइट्रोजन है, इतने ऑक्सीजन है, तो हम वेट फिक्स कर लेते हैं। देखिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ऑक्साइड ए में हम ऐसे लिखेंगे 63.64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का वेट फिक्स करते हैं 36 पॉइंट, ऐसा कोई रूल नहीं है, आप चाहे तो नाइट्रोजन का वेट भी फिक्स कर सकते हैं। 36.36% ऑफ ऑक्सीजन, तो हम ग्राम में लिख लेते हैं ऑफ ऑक्सीजन। अगर 100 ग्राम ऑफ सब्सटेंस है तो इट कंबाइंस विद 63.64 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के नाइट्रोजन का वेट आ जाएगा 63.64 अपॉन 36.36, this is equal to 1.75 grams of नाइट्रोजन। सेकेंड केस में 53.33% है ना, तो इसको अगेन ग्राम ले लेते हैं, ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन combines with 46.67 grams of nitrogen. Therefore 1 gram of oxygen will combine with 46.67 upon 53.33 and ये आ जाएगा 0.875 grams ऑफ नाइट्रोजन। बस अब इन दोनों की रेशियो निकालनी है, इसकी और इसकी। सो द नाइट्रोजन की रेशियो 1.75:0.875, दैट इज 2:1। तो अगेन सिंपल होल नंबर रेशियो आ गई। चलिए नेक्स्ट करते हैं। Okay, next is a metal forms 2 oxides. One contains 46.67% of metal and other
63.94% of metals show that these results are in accordance with the law of multiple proportion. बिल्कुल एग्जैक्टली पिछले वाला न्यूमेरिकल है. फर्स्ट में क्या है, 46.67% ऑफ मेटल है. जस्ट अ सेकेंड. ओके, ऑफ मेटल है. तो दैट मीन्स इस केस में जो आपका ऑक्सीजन होगा उसकी कितनी अमाउंट आ जाएगी, 53.33% ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि ऑक्साइड में अगर 46.67% मेटल है तो बाकी क्या होगा, ऑक्सीजन. सेकंड में 63.94% ऑफ मेटल है तो 36.06% ऑफ ऑक्सीजन होगा 100 में से माइनस करके. तो बस अब सेम करेंगे, फिक्स्ड वेट कर लेते हैं. तो हम ये करते हैं कि फर्स्ट केस में 53.33 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये आप लिख सकते हैं इफ अमाउंट ऑफ ऑक्साइड इज 100 ग्राम, देन उसमें से 53.33 ग्राम यहाँ आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा नहीं है. अमाउंट ऑफ ऑक्साइड इज इक्वल टू 100 ग्राम मान लेते हैं, लेट. उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज के हिसाब से 53.3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने के साथ कंबाइन कर रही है, कंबाइंस विद 46.67 grams of metal. तो 1 gram of oxygen will combine with 46.67 upon 53.33. This is 0.875 gram of metal. And second case में 36.06 grams of oxygen combines with 63.94 grams of metal. तो 1 gram of oxygen will combine with 63.94 upon 36.06. दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1.77 ग्राम. अब इन दोनों की रेशियो निकाल लेंगे. 0.875 is to 1.77, ये आ जाएगा 1:2. अगेन दिस इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो. चलिए लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं इस वीडियो का. नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फॉर्म्स 5 कंपाउंड विद ऑक्सीजन. मैंने अभी एक एग्जांपल में कराया भी था आपको जब मैं मल्टीपल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन करी थी. इन विच 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 0.572, 1.14, 1.73, 2.28 and 2.85 grams of oxygen respectively. Show that these data illustrate the law of multiple proportion. इसमें तो कुछ सोचने वाला है ही नहीं है. नाइट्रोजन के 5 कंपाउंड्स हैं, हर एक में 1 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन कर रहा है, 0.572 ग्राम ऑक्सीजन इससे. सेकंड में इसमें भी 1 फर्स्ट कंपाउंड, सेकंड कंपाउंड, थर्ड कंपाउंड, फोर्थ कंपाउंड एंड फिफ्थ कंपाउंड, सब में 1 ग्राम है एंड कंबाइन कर रहे हैं. फर्स्ट में 0.572 ग्राम ऑक्सीजन से, सेकंड में 1.14 ग्राम, थर्ड में 1.73, देन 2.28, देन 2.85 ग्राम. अभी आप ये बताइए कि इसमें तो सब रेशो एक नाइट्रोजन का तो फिक्स ही अमाउंट, तो हम क्या करेंगे, इसकी रेशो निकाल लेते हैं. तो इस टू 1.14 is to 1.73 is to 2.8 is to 2.85. ये आ गया 1 is to 2 is to 3 is to 4 is to 5. इसमें कुछ भी और कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक एटम की अमाउंट ऑलरेडी फिक्स्ड है, नाइट्रोजन की अमाउंट ऑलरेडी फिक्स्ड है. एंड जैसे मैंने कहा कि जैसे मैंने प्रीवियसली किया, मैंने ऑक्सीजन की फिक्स की. इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट अ रूल टू फिक्स ऑक्सीजन की अमाउंट. आप चाहें
तो आप मेटल की अमाउंट फिक्स करके, जैसे मैंने यहाँ पे सब केसेस में ऑक्सीजन की अमाउंट फिक्स की है, इट्स अप टू यू, यू कैन फिक्स मेटल की अमाउंट एंड देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे इन्होंने नाइट्रोजन की रेशियो अमाउंट फिक्स की हुई है एंड ऑक्सीजन की अमाउंट्स की रेशियो निकाली है। सो दिस वाज एज ऑफ नाउ अबाउट वेरियस लॉज केमिकल कॉम्बिनेशन के, जो है हमारे अभी के लिए कांस्टेंट कॉम्पोजिशन था, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड मल्टीपल प्रोपोर्शन। अभी हम और न्यूमेरिकल करेंगे मल्टीपल प्रोपोर्शन पे भी, एंड देन हम एक न्यू लॉ करेंगे दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इन द अपकमिंग वीडियो।